Good afternoon, students. Class 10th Physics chapter is going on electricity, and our topic is resistivity, which we have already done the mathematical derivation of resistivity. Resistivity is the property of every conductor, how it opposes or it utilizes the electricity, opposes the flow of electricity and utilizes its conductor, and if it will utilize some amount of current, then definitely it will be utilized. Okay, our formula is R equal to rho L upon A. Here R is the resistance, rho is the conductance or resistivity, and resistance of a conductor depends directly on the length, means this R is directly proportional to L, length, okay, and R is inversely proportional because it is in the denominator. Therefore resistivity of this resistance of this conductor will be inversely proportional to the area of the conductor. Means if the area is increased, resistance will decrease. If the length is increased, resistance will increase. It is, and rho is our resistivity constant, and for this resistivity constant we have these constants for every material. It is different, and the details of the materials has been given on the table number 200, page number 207 NCERT for the resistivity. This is telling that resistivity constant or the value of rho in this table. Now we are taking up a numerical which we have already taken, I hope. 12.5 we have completed, and 12.6 we are going to take. A wire of given material having length L. Students, here we have a NCERT problem है ये, पेज नंबर प्रॉब्लम नंबर 12.6 and page number 209. Okay, this is your, in this question it is said that a wire of given material having length L and area of cross section A. L, length of the wire. In this question we have length of the wire. Length of the wire is equal to L, and area of cross section is equal to A, and what we have to find out against it, has a resistance of 4 ohm. The R of the resistance R is equal to 4 ohm. Here a conductor is given to you, the length of the conductor is L, area of cross section of the conductor is A, and resistance of the wire is this particular conductor is 4 ohm. And what we have to find out now, we are coming, if the length, what would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2? What would be the resistance? Means R is equal to question mark when
एल लेंथ इज इक्वल टू L/2। यहाँ पे L लेंथ दी गई थी। इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह गया अगर आपकी लेंथ को हाफ कर दिया जाए, बाकी पैरामीटर्स सेम रहें, तो रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ जाएगा, इस 4 पे क्या चेंज आएगा, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। मीन्स now we will put our data in this particular segment of R is equal to rho L upon A. Students, R is equal to 4 rho as in this first case, okay, rho is as in the first case, it is your first case. In the second it is okay. तो फर्स्ट केस में आपका रो जो था ना, रो ही रहा, वहां पे चेंज क्या हुआ है, सिर्फ L/2 हो गया L की बजाय, तो L/2, और ये रो है ही है आपका, एज इट इज़ है ये, इसे हमें नहीं चेंज करना, जो हमारा फर्स्ट पोजीशन में था वही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इसका चेंज नहीं हो रहा है। तो अब नई कंडीशन में हमारे पास इस 4 की वैल्यू जो यहाँ L/A के जो इस कंडीशन में 4 था, वही अब यहाँ हो गया 4 ओम के बराबर, मगर L की वैल्यू L/2 हो गई। तो अब इसे हम फर्दर कैसे करेंगे, हम इस डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करेंगे L/2 से। लेंथ इज एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर क्या हो गया सेकंड केस के लिए, A इज इक्वल टू 2A के बराबर हो गया है। R इज क्वेश्चन मार्क व्हेन L/2 लेंथ इज L/2 एंड A इज इक्वल टू 2A। अब इसका एरिया क्या है, डबल कर दिया गया है। इफ लेंथ ऑफ द एरिया एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2A, नाउ पुट दिस इन द, ये this 2A you will put here, this is your 2A, okay. Now what we will do, L/2 into 2A/1 था, 1/2A हो गया, and what we will do, rho L upon 4A, L/4A, and this is 4, this is 4, this 4 will L/2A, L/2 into 2A/1, 1/2A मल्टीप्लाई किया, 2A/1 डिवाइड हो रहा था तो 1/2A/1, 2A/1। यहाँ पे ये 2A/1 है डिवीज़न के लिए, और जब नीचे किया जाएगा तो 2A/1 हो जाएगा। व्हाट वी विल डू है, 2A L/2A, रो इज इक्वल टू 1/A, 1/4 रो इज इक्वल टू L/4A आ गया, और ये 4 से 4 L/4A, एंड हेंस R2 इज इक्वल टू 1/4R, R2 इज इक्वल टू 1/4R। तो कहने का मतलब ये है कि L/2A, A इज इक्वल टू 2A हो गया, और यहाँ पर रो इज इक्वल टू 4A हो जाएगा, L/2 इंटू 2A।
1/2 है, और 1/4r, r की वैल्यू 1/4r के बराबर आ जाएगी। तो ये 1/4r की वैल्यू 4 थी, तो ये हो जाएगा कितना, 4/4 और इजिकल टू 1 ओम आ जाएगा ये। इन दिस वे what we will have done, that value of this a is 2a we have put here and length is become l/2, और इसे जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया a/4a, रो l/4a, और ये r जो है ये 1/4 ऑफ r, l/4a की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे क्योंकि यहाँ 2a है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन l/2a, एंड हेंस 1/4 ऑफ r आ गया, एंड देन दिस इज बिकम 1/4 ऑफ r, और r इज इक्वल टू 1 ओम इज देयर, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट केस है 4 ओम है, और 4 ओम में 1/4r हो जाएगा। r ऑलरेडी हमें जो फर्स्ट केस का दिया हुआ था वो 4 ओम दिया था, 4 को 4 से डिवाइड किया, इस तरीके से हमें 1/4 ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज 1 ओम, राइट। दिस इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ वी आर कमिंग टू NCERT क्वेश्चंस विच हैव बीन गिवन इन आवर चैप्टर। These are the in text questions. First question is, on what factors does the resistance of a conductor depend? Question है on what factors will the resistance of a conductor depend? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ये तो हमारा हो गया। अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर ये l/a हो गया है, ये हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेज नंबर 209, ये 209 NCERT का क्वेश्चन है, और हमसे पूछा गया है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ऑन व्हाट फैक्टर डज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस, आंसर नंबर 1, the resistance of a conductor depends on length and area of cross section, cross section of the conductor। ठीक है, क्योंकि इस फार्मूले में हमें पता है एक तो लेंथ वेरिएबल है, दूसरे एरिया भी वेरिएबल है, और मतलब लेंथ को अगर चेंज करेंगे तब हमारा रेजिस्टेंस डायरेक्टली बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए इसने यदि पूछा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन हमारा था ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, किन फैक्टर्स के ऊपर कोई रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स हमारी रेजिस्टेंस इन दो फैक्टर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। बढ़ेगी कब, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ, इसलिए बढ़ेगी,
और क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसलिए यहाँ पर घटेगी। इन दिस वे द क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर। करंट जो फ्लो करेगी वो डेफिनेटली, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो करंट विल फ्लो, आंसर नंबर 2, करंट विल फ्लो easily in a thick wire, थिक वायर। क्योंकि इसका रीजन मैंने आपसे बता दिया कि ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमारा कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस का रिलेशन आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो कहने का मतलब ये कि जब एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और जब एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो इन दिस वे आंसर नंबर 2 इज डेफिनेटली इफ द will the current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material. In this condition we have to remember, if the wire was the copper in first condition, then definitely the second condition, when the thickness is increased, the wire should be copper, it is sure. So that is why only the factor was mathematical, it is inversely proportional to the resistance area of cross section. Then only we are doing, writing this line only, that if as for the material is concerned, the comparison can be done only with one material, not different materials, because thickness is being answered. Okay. What change will occur in the current through it? अगर हम let the resistance of an electrical component remain constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value, what change will occur in the current through it? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमें बताना है स्टूडेंट्स। इसमें हमसे पूछा क्या गया है, पहले हम ये समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे। इसके अंदर स्टूडेंट्स पूछा ये गया है द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है कब? वाइल the potential difference across the two end of the component is decrease। अगर मान लो ये एक कंडक्टर है ये आपका एक कंडक्टर है ए और बी के बीच में, अब इसकी रेजिस्टेंस R इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कब होती है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये कांस्टेंट एक ही कंडीशन में होती है, जब इसका टेम्परेचर बिना बढ़ाए और कंडक्टर को चेंज ना किया जाए। तो ये कैसे कांस्टेंट होती है रेजिस्टेंस कि अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज करता है तो करंट डिक्रीज कर जाएगी, तभी तो कांस्टेंट आएगा R, क्योंकि R इज व्हाट? R इज इक्वल टू V अपॉन I। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R क्या है? रेजिस्टेंस है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर में
कोई वोल्टेज दी जा रही है और कुछ करंट फ्लो कर रही है, तो उसके एंड्स पे होने वाली पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रही है तो करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो वही है कि V अपॉन आई इज इक्वल टू आर होता है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वहां हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था ना, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये क्या होगा, V, और V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R इज व्हाट, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो गया ना। इन दिस वे वी हैव here revised our Ohm's law once again, and what to do in this question number 4, question number 3. Question number is our 3 now of the same page, कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, R कांस्टेंट है, तो V अपॉन आई इसका R की वैल्यू आती है, ये हमारे को मालूम है पहले से ओम्स लॉ से। वो आती कैसे है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग, और वो अभी मैंने ओम्स लॉ आपको वापस रिमाइंड किया था कि कैसे होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फिर V इज इक्वल टू आई आर से R इज इक्वल टू V बाई वाई, वो ये वही लिखा हुआ है। सो अब हमें पूछना है कि यहाँ पूछ रहा है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ इफ V बिकम्स V बाई टू। अगर वो V बाई टू हो जाता है, वोल्टेज पहले अगर V है और बाद में V बाई टू हो जाती है, तो हमसे पूछा जाता है कि across the two ends component decreases to half, okay, what change will occur in the current? तो current क्या होगा? current is question mark, current is question mark। अगर 2 था और V को हाफ कर दिया तो I पर क्या फर्क पड़ेगा, हमसे यही पूछा जा रहा है। तो हम इसे कैसे करेंगे, I is equal to V बाई टू इंटू आर। I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस हाफ किया तो ये कितना हो गया, इंटू 1 बाई आर, और V बाई टू आर हो गया। और V बाई टू आर अगर ये हो गया I, तो फिर अब हम इसे रिलेशन में कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू V बाई टू आर। रजिस्टेंस आधी हो गई कि नहीं, अगर हमारा वोल्टेज हाफ हुआ तो का रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, और I अपॉन टू, I जब हमने करंट को फ्लो किया I बाई टू इज इक्वल टू V, ये 2 इधर आ गया, 2I के बराबर हो जाएगा। I इज इक्वल टू V बाई टू आर एंड I बाई टू इज इक्वल टू वी आर। रह गया ना, अगर हम इसे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो I बाई टू यहाँ हो गया, और ये हो जाएगा 2 से 1 अपॉन 2 से, तो ये हो जाएगा V बाई आर। I बाई टू इज इक्वल टू V बाई आर, हैंस क्या हो जाएगा, द रेजिस्टेंस इसका हाफ हो जाएगा, कि V बाई आर के बराबर हो जाएगा। और V बाई आर होता क्या है, I हो गया हमारा, ये V बाई आर यहीं है, और ये 2I के बराबर हो जाएगा। सॉरी इट इज़ 2I, ठीक है। अगर वोल्टेज हाफ किया गया तो ये हुआ V बाई टू आर, और V बाई टू यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 2, तो करंट विल बी डबल्ड, तो करंट विल बी डबल।
ठीक है। अगर हम कहीं पर भी अपने वोल्टेज को हाफ कर देते हैं तो करंट डबल हो जाएगी। अब देखिए कैसे मैं समझा दूं, यहाँ पर ओम्स लॉ को यहीं लगाते हैं हम कि हमने क्या किया था कि R जो है वो कांस्टेंट है, मान लीजिए V/2। अगर किसी केस में ये 4 वोल्ट था तो ये अगर हमने हाफ किया तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही पूछा जा रहा है। किसी केस में ये 4/2 था और I हमारा था 2, कहीं पर एक 4 वोल्ट था, V = 4 था और I = 2 था, ठीक है। अब एक केस आया कि हमारा ये V/2 हो गया, R = V/I होता है, और ये V जो है ये हमारा हो गया 2, तो I कितना हो जाएगा सर, ये R कांस्टेंट ही है हमारे पास, तो I कितना होगा। अगर हमने इसे 2 किया है, यहाँ से 2 किया है ना, तो I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम, 4 से 2 हो गया। जब V की वैल्यू 2 थी तो I की वैल्यू 4, तो I की वैल्यू 2, तब क्या आया हमारे पास, 2 हमारा रेजिस्टेंस है। क्लियर। अब इस केस में हम ये तो 2 ही रहता है, कब, जब 4/2 हो जाता है। अब इसको हाफ किया अगर आपने, मान लीजिए कि ये 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, R तो 2 ही रहना है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस कंडीशन में, तो I की वैल्यू स्टूडेंट्स हो जाएगी 2/1 लिख सकते हैं आप, और 2I = 2 और I = 2/2, दैट इज 1। कहने का मतलब जब वोल्टेज को हमने 4 से हाफ किया तो करंट हमारा 2 से 1 आ गया। क्लियर। तो इन दिस वे हमारा जो है R की वैल्यू कांस्टेंट तभी रहेगी जब हमने V/2 किया था, तो I की वैल्यू 2I हो जाएगी, हमारी डबल हो जाएगी। कहने का मतलब रजिस्टेंस, अगर वोल्टेज हाफ हुई तो वो बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी, करंट हाफ हुई तो वोल्टेज बढ़ेगी, कोई एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी, जिससे कि R की वैल्यू कांस्टेंट बनी रहेगी। तो ये घटी है तो ये बढ़ गई है, तो फिर R बराबर आ जाएगा। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि हमने एग्जाम्पल ये लिया है कि अगर V और I की प्रोपोर्शन सेम रहें तो ये करंट हो जाएगा। तो V और I के रेशियोज आपस में सेम रहेंगे, R की वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट आनी है इसलिए। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या पूछ रहा है, चलते हैं उस पर कि क्वेश्चन नंबर 4 NCERT में हमें क्या करना है। वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन ए प्योर मेटल। कि किसी भी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि कॉइल जो है मतलब एलिमेंट जो हैं, चाहे प्रेस का हो चाहे हीटर का हो, वो क्यों एलॉयज का बनाया जाता है। एलॉयज स्टूडेंट्स मैं बता देना चाहूँगा, ये फिजिक्स का पीरियड है नो डाउट, केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा रिवीजन करिए कि मेटल एंड नॉन मेटल में एलॉय हम उन्हें कहते हैं जहाँ एक या एक से ज़्यादा मेटल को मिक्स करके किसी चीज़ के साथ जो बनता है उसे हम एलॉय कह देते हैं। कभी 2 मेटल्स ही मिला दिए जाते हैं, कभी थर्ड इंग्रेडिएंट नॉन मेटल भी होता है उसे भी मिला दिया जाता है, जैसे क्रोम, निकिल क्रोम, इस तरीके के बहुत सारे एलॉय आते हैं। और सबसे ज़्यादा बर्निंग एग्जाम्पल होता है गन मेटल का। हम जानते हैं कि गन मेटल एक हाई टेम्परेचर और हाई कोलिजन मीन्स हाई टेम्परेचर और हाई फ्रैक्शन को बर्दाश्त कर लेता है, इसीलिए उसे हम गन मेटल कहते हैं। वो नॉर्मल आयरन की तरह बिहेव नहीं करता, बहुत
हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्शन को दैट कैन रेजिस्ट, एंड दैट इज वाई इट इज सेफ। ओके, इन दिस वे जब कभी भी हमें एक हीटिंग डिवाइस बनानी है तो हमें अपने ओरिजिनल मेटल के अंदर दूसरे कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे डालने पड़ेंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट, जो इस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर दे। क्यों? क्योंकि ये तो रेड हॉट हो जाते हैं, इनका टेम्परेचर तो बढ़ जाता है, और रेड हॉट होने पे मेटल को तो पिघल के लिक्विफाई कर देना चाहिए। तो इन दिस वे वाई, व्हाट इज द रीजन? रीजन इज ओनली to increase the boiling and melting point, to increase the boiling point and melting point। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, जिसमें पूछा गया वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड द इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय। तो एलॉय का यूज हम किस लिए करते हैं? टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। और